Good morning, dear students. Today's topic is the capacity of distribution reservoir. As we have discussed in the previous classes, a distribution reservoir is a very important unit in a modern distribution system. In a water distribution system, reservoir is a very important part. So, what is a distribution reservoir? Distribution reservoir is basically a service reservoir which is required for storage of filtered water for supplying water during emergencies. For example, it can be used for firefighting purpose, it can be used in the times of repairs, it can be used in the times of breakdowns of the main systems, right? And it is also helping us in absorbing the hourly fluctuation in the normal water demand, right? What happens is that if we when we take water from an intake structure and we start supplying it after the treatment, then the main storage is sometimes there is a single pumping unit which is pumping the water from the main storage to entire city or entire locality that it is serving. Then what happens is at the time of the when the water requirement is at its peak, then what happens is that the draft required for that water is very high. So to basically help the main reservoirs to come to terms with these difficulties which are arising due to the difference in water demand, or water demand can be lower on the night hours or in the early morning hours, and it can increase from say 6 a.m. onwards to 8:39 p.m. in the evening. So to help the main reservoirs, and to help the main reservoirs also in the times of repairs, also in the times of breakdowns, also in the times of emergencies like firefighting, etc., a distribution reservoir is a very important component. So how much should be the capacity of a distribution reservoir? Today we are going to discuss how should we calculate the capacity of a distribution reservoir. A distribution reservoir, you understand that it cannot be the size of the main reservoir. So at least how much amount of water is required in a distribution reservoir, how do we get to know that? So there are basically three main components of a distribution reservoir on which the capacity of the distribution reservoir depends. It can be the balancing storage or the equalizing storage, and the second can be the breakdown storage or emergency storage, and the third can be fire storage, right? So one by one we are going to discuss various types of elements which constitute the capacity of a distribution reservoir. The first element is the balancing storage or the equalizing storage. As you can see, the main function of a distribution reservoir to provide storage to meet the fluctuating demand of water with a constant rate of pumping water into the reservoir. The quantity of water required to be stored in the reservoir for balancing or equalizing this variable demand. You are getting this? जितना पानी का रिक्वायरमेंट होगा रिजर्वायर का, काहे के लिए, जो आपका फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं डिमांड में, उन डिमांड फ्लक्चुएशंस को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो वो वाटर जो है विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग, ठीक है, इनटू द रिजर्वायर इज़ नोन एज द बैलेंसिंग स्टोरेज और इक्वलाइजिंग स्टोरेज, ठीक है। यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि रिजर्वायर में स्टोर होगी, किसके पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि जो वेरिएबल डिमांड आ रही है अगेंस्ट अ कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग। कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग के अगेंस्ट मतलब ऑब्वियसली आप जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें जो है एक सिंगल रेट ऑफ पंपिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस सिंगल रेट ऑफ पंपिंग में जो है अगर आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन दैट केस दिस पंपिंग विल फॉल डाउन, ठीक है, यानी कि द सिस्टम्स एफिशिएंसी विल फॉल डाउन। तो इसके कारण से हमको ज़रूरत होती है कि हमारे पास जो है एक एक्स्ट्रा जो है वो आपका स्टोरेज हो, जो ऐसे समय में जब पे जो है आपकी डिमांड्स जो है वो पीक करती हैं उसमें काम आ सके, तो वो हमारा जो है वो बैलेंसिंग स्टोरेज या इक्वलाइजिंग स्टोरेज कहलाता है। अब ये बैलेंसिंग स्टोरेज और इक्वलाइजिंग स्टोरेज जो है उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आपका जो है वो बैलेंसिंग स्टोरेज है और कौन सा आपका जो है वो
इक्वलाइजिंग स्टोरेज किस प्रकार से निकाला जाए, कितनी क्वांटिटी निकाली जा सकती है, वो हमारे पास दो मेथड है। पहला है हमारा हाइड्रोग्राफ मेथड और दूसरा है हमारा मास कर्व मेथड। हाइड्रोग्राफ मेथड में क्या करते हैं कि एक टिपिकल मैक्सिमम डे, ठीक है, आपको ये भी पता है कि महीने में, साल में अलग अलग सीजन्स के हिसाब से, अलग अलग दिन के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन कि उस दिन फेस्टिवल तो नहीं है, उस दिन क्या है, उसके हिसाब से देयर आर ऑल्सो सीजनली वेरिएशंस एंड देयर आर ऑल्सो डेली वेरिएशंस, राइट। तो एक टिपिकल हम मैक्सिमम डे पिक कर लेंगे कि जिसमें जो है आपकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम रहने वाली है एज एक्सपेक्टेड बाय यू, ठीक है। और उस मैक्सिमम डे के जो है जो रिस्पेक्टिव आवर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है डिमांड और उसका जो टाइम है उसके अगेंस्ट जो है हम एक हाइड्रोग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो है एक हाइड्रोग्राफ का फिगर लगाया हुआ है। इसमें क्या देख सकते हैं आप, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टाइम इन आवर्स, ऑन वाई एक्सिस यू हैव डिमांड, राइट। तो आपने जो है क्या करा है कि डिमांड और टाइम के बीच में एक जो है वो हाइड्रोग्राफ जो है वो प्लॉट कर रखा है, ठीक है। अब इस हाइड्रोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो आपका 0 से 6 बजे तक का समय है उसमें रिक्वायरमेंट कम है। सिमिलरली ऐसे ही 8 बजे के बाद से लेकर आपका 12 बजे रात तक के समय में फिर से रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, और 6 साढ़े 6 बजे से लेकर आपका रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ना शुरू होती है, और वो बढ़ते बढ़ते जो है जो दिन का टाइम होता है उसमें फिर से रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और उसके बाद शाम को फिर से रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसके बाद फिर वो जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक मैक्सिमम डे पर जो है वो नॉर्मल हाइड्रोग्राफ आपने प्लॉट करा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है फॉर अ 24 आवर पंपिंग the pumping rate will be equal to the mean hourly demand shown by the line PQ, ठीक है। तो जो आपकी जो लाइन PQ शो हो रही है वो PQ जो है वो क्या है, इट इज़ द मीन ऑफ द hourly डिमांड। जो 24 आवर्स ऑफ ए मैक्सिमम डे का आपने प्लॉट करा है उसका जो मीन है वो PQ से होके गुजर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो रिक्वायर्ड स्टोरेज है, कौन सी स्टोरेज, बैलेंसिंग स्टोरेज या फिर जिसको हम इक्वलाइजिंग स्टोरेज भी कहते हैं, वो जो है वो कैसे आपको पता चलेगी, दैट रिक्वायर्ड स्टोरेज ऑफ द बैलेंसिंग स्टोरेज और द कैपेसिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर्स कंपोनेंट ऑफ बैलेंसिंग स्टोरेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया इन द शेडेड पोर्शन between the line PQ. The line PQ is the mean of the hourly demand and the positive portion that is given by the curve BCE. तो BCE का अगर एरिया हम किसी प्लेनीमीटर के थ्रू निकाल दें, ठीक है, प्लेनीमीटर एज यू नो कागज़ पे एरिया निकालने के काम आता है, तो प्लेनीमीटर के थ्रू अगर हम BCE एरिया निकाल दें या किसी और तरीके से जो है हम एरिया निकाल लें BCE कर्व का, जो कि आपका शेडेड पोर्शन में है, किस लाइन के ऊपर, PQ लाइन के ऊपर, तो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड स्टोरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंसिंग स्टोरेज, राइट। तो आपको इससे पता चल रहा है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज नहीं होगा तो आपको जो है एक बहुत ही हाई रेट पंपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यानी कि जो आपका जब पंपिंग आप एक कांस्टेंट रेट से ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो आपको जो है वो एक बहुत हाई रेट ऑफ पंपिंग देना पड़ेगा, किस समय के लिए, जिस समय में रिक्वायरमेंट्स जो है अपने पीक पर हैं। लेकिन अगर आपको एक कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग देना है तो व्हाट यू कैन यूज़ दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर। इसमें आपने बैलेंसिंग स्टोरेज निकाल दिया, ठीक है। अगेन ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर अगर आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक स्टोरेज सूटेबल स्टोरेज कैपेसिटी का, तो जो पंपिंग रेट है यानी कि जो मेंस का जो पंपिंग रेट है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 30 से 40% तक रिड्यूस हो जाती है। अब आप कह सकते हैं कि जितना हाई रेट ऑफ पंपिंग होगा उतना ज़्यादा जो है आपको बिजली खर्च होगी, उतना ज़्यादा आपको जो है वो सिस्टम में जो है आपको पाइप्स के साइज़ देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है आपका हाई रेट ऑफ पंपिंग की जगह जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर दे दिया जाता है। तो उसका पहला तरीका है आपका हाइड्रोग्राफ मेथड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका मास कर्व मेथड।
A mass curve of demand is a cumulative demand curve and is obtained by continuously adding the hourly demand and plotting these against time of the maximum day as shown in the figure. ठीक है, तो क्या है ये जो आपका मास कर्व मेथड है, देखिए मैंने एक दे रखा है मास कर्व मेथड का। तो इस मास कर्व मेथड में क्या करते हैं कि हम सेम टाइम और जो है एक्यूमुलेटेड डिमांड जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो आपका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और इस ग्राफ में क्या है कि 0 आवर्स से शुरू होकर 24 आवर्स तक कंटिन्यूसली जो है वो रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज वी आर एक्यूमुलेटिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी जितना भी जो है मान लीजिए 0 से 1 घंटा, ठीक है, 1 से 2 घंटा, तो जो है 0 से 1 जो आई थी वैल्यू, उसमें जो है फिर 1 से 2 वाली वैल्यू ऐड कर दी, पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर 1 से 2 वाली में 2 से 3 वाली वैल्यू ऐड कर दी और 3 बजे का पॉइंट जो है वो प्लॉट कर दिया। ऐसे ही अभी तक 3 में जितना हुआ था उसमें अगले 3 से 4 घंटे वाली जो आपकी वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया और उसके बाद पॉइंट प्लॉट कर दिया। तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर एक्यूमुलेटिंग द डिमांड। ठीक है, और जो है 24 आवर्स पे जो आपका जो पॉइंट प्लॉट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम डिमांड इन द इंटायर डे। ठीक है, तो आपने क्या करा है कि आप जो है वो एक मास कर्व जो है वो प्लॉट कर रहे हैं जो कि एक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इस इंक्रीजिंग जो आपकी मास कर्व है इसकी में स्टीपनेस अगर आएगी तो दैट मीन्स अ हायर रेट ऑफ डिमांड, और अगर ये जो है आपकी फ्लैट हो जाती है किसी पोर्शन पर तो दैट मीन्स द लोअर रेट ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये जो कर्व है ये ए से शुरू होकर बी तक जाता है, तो अगर हम इस कर्व को जो है एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ए बी लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए बी लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ए बी लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो है जो आपका पॉइंट सी है, ठीक है, वो उस पर हमने जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो कि लोएस्ट पॉइंट है इस कर्व का, और जो पॉइंट डी है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी पैरेलल टू लाइन ए बी, जो कि आपका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, जो कि आप देख सकते हैं कि ई एफ से रिप्रेजेंट हो रही है, यही आपकी जो है वो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में जो इक्वलाइजिंग स्टोरेज या फिर आपकी बैलेंसिंग स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ गिवन बाय द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the tangent passing through C and the tangent passing through D, where C is the point of lowest requirement and D is the highest deficiency point, right? तो जितनी डेफिसिट हो रही है, तो CC क्या है, CC इज़ द एक्सेस सप्लाई। ठीक है, यानी कि जिस टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आप जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिजर्वायर से जो है आप पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये रिक्वायरमेंट जितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट वुड बी अ सरप्लस। ठीक है, और आप जिस टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो उस टाइम क्या होगा, डेफिसिट होगा। ठीक है, यानी कि डी डी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डेफिसिट एंड सी सी रिप्रेजेंट द एक्सेस सप्लाई। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई विच विल, ठीक है, तो ये जो है आपका इसको रिप्लेनिश करना होता है, जितना भी जो है आपका रिक्वायरमेंट है तो उतना ही आपको जो है स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगी। तो व्हाट वी कैन सी कि द स्टोरेज एस, अगर कैपिटल एस से हम स्टोरेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने देखा इसमें जो ई एफ है उसको एस यानी कि वही स्टोरेज है हमारा, तो द स्टोरेज एस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर विल बी द सम ऑफ मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई ई पी। ठीक है, यानी कि जो सी सी डैश है उसका एंड मैक्सिमम एक्सेस डिमांड यानी कि मैक्सिमम डेफिशिएंसी ई डी। ठीक है, दैट इज गिवन बाय डी डी डैश। तो एस इज इक्वल टू ई पी प्लस ई डी, वेयर एस इज द स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड, ई पी इज द मैक्सिमम एक्सेस ऑफ सप्लाई थ्रू पंपिंग, ई डी इज द मैक्सिमम एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक है, और मैक्सिमम डेफिशिएंसी इन द मेन सिस्टम, राइट। ये जो आपका मैक्सिमम एक्सेस ऑफ सप्लाई थ्रू पंपिंग है, यानी कि कितना जो है आपका एक्सेस में आ रहा है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, और आपका मेंस में कितना मैक्सिमम डेफिशिएंसी आ रही है और जितना पानी का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, वो आपका जो है वो ईडी है, राइट। तो टोटल जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इन दोनों का सम है ईपी और ईडी का, राइट। उसके बाद ये तो आपका जो है हो गया बैलेंसिंग स्टोरेज और इक्वलाइजिंग स्टोरेज।
Again, I told you about that there are three type of components in the capacity of distribution reservoir. The first was the balancing or equalizing storage, which we have decided by the above two methods that I have described. The second type of the capacity requirement for a distribution reservoir is the breakdown storage or emergency storage. So breakdown storage or emergency storage is the storage required to be provided in a distribution reservoir to take care of emergencies which may arise due to failure of pumps, failure of electricity supply, etc. लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना कि कितना जो है आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, ये बहुत मुश्किल है कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर दें. क्यों आपके लिए मुश्किल है? क्योंकि कितनी बार आपका पंप फेल होगा, कितनी बार आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल होगी, कितनी बार आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की ज़रूरत पड़ जाएगी इन सिस्टम. ठीक है, इसको प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता. लेकिन एज ए जनरल रूल हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर जो है उसकी 25 कैपेसिटी जो है 25% ऑफ द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज़ द ब्रेकडाउन स्टोरेज और द इमरजेंसी स्टोरेज. या फिर इसको जो है हम 1.5 to 2 टाइम्स द एवरेज आर्ली सप्लाई जितनी चाहिए होती है उसका 1.5 से 2 गुना तक जो है हम एज ए ब्रेकडाउन स्टोरेज और इमरजेंसी स्टोरेज प्रोवाइड कर देते हैं. उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका फायर स्टोरेज. तो एक प्रोविज़न फायर स्टोरेज का भी होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर फॉर फायर फाइटिंग पर्पज़, यानी पानी का रिक्वायरमेंट फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए भी होता है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि वी एलोकेट अ सेपरेट कोटा ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर फॉर जस्ट द firefighting purposes, which is called fire storage. All these three components add up to form the capacity of the distribution reservoir. Okay, so we have discussed the theoretical portions of the capacity of distribution reservoir based on the above two methods, the hydrograph method and the mass curve method. We will in the next class discuss a few numericals which will help us to understand the concept better. Thank you so much.